Hello students, this is the fifth video lecture of chapter 5, the fundamental unit of life, class 9 science. In this video lecture, I will be talking about the brain of the cell, that is nucleus. Okay, so is known as brain of the cell. Why? Because controls chemical activities and other processes occurring inside the cell. This is important. कि why do we, refer nucleus as the, brain of cell? Because it controls chemical activities and all other processes which are going inside the cell. Okay, now as we discussed, just as cell is having cell membrane, okay, which is the outermost covering, and this cell membrane or plasma membrane is helping separation of cell contents from the outer contents. Okay, now we know that suppose if we consider one cell with blue colored plasma membrane, and inside, most probably in most cases the schematic representation goes like this. Schematic, typical, मतलब एक कॉमन, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ये मैंने एनिमल सेल बनाया है, ये मैंने प्लांट सेल बनाया है, ऐसा कोई स्पेसिफिक सेल नहीं लिया है, बट इन जनरल कि अगर एक सेल को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगी तो ज्यादातर दे रिप्रेजेंट न्यूक्लियस एट द सेंटर. Rather than drawing nucleus like this, I would be, drawing like this. Now why? Okay, why? Because this is having nucleus is having outer membrane, and this outer membrane is double layered, and is having pores. Okay, so suppose if I am considering this as nucleus, so there is one more membrane, that means double layered, that means two membranes, double membraned, you can say cell organelle. Nucleus can be considered as cell organelle, but is separate from cell organelles. So what is the difference between nucleus and cell organelles? We would be reaching in few video lectures. But right now, since nucleus is present inside the cell, is having two membraned, layer or outer membrane. Now this contains pores. Okay, this contain pores, and these pores allow the movement of substances. Okay, these pores allows the movement of substances between what? Between this, you can say, nucleoplasm and cytoplasm. Okay, so nucleoplasm and cytoplasm. So suppose if this is the cell, so cytoplasm and nucleoplasm, तो इन दोनों के बीच जो exchange of substances होगा, that would be through pores, which is present
in the membrane, and the membrane is double layered. Okay, so nucleus is having double layered membrane. Clear? Now what is there inside this membrane? Nucleus के अंदर क्या है? So nucleus is composed of DNA and proteins. Okay, so basically DNA is what? You have heard this many a times, but what is its full form? Deoxy ribonucleic acid, DNA, deoxyribonucleic acid. This DNA is responsible for inheritance of features of parents, है ना? ऐसा बोले तू सेम तेरी मम्मी के जैसे दिखता है ना? यहाँ दिखती है, या पापा के जैसे दिखती है, ये तेरे बाल तेरी मम्मी पे गए हैं, ऐसा बोलते हैं ना, हाइट. ओके, सो दीज ऑल थिंग्स आर नथिंग बट फीचर्स. ये फीचर्स हमारे पेरेंट्स पे जा रहे, पेरेंट्स जैसे है वैसे चाइल्ड दिखता है ना? सो दिस इज बिकॉज ऑफ DNA. DNA is responsible for inheritance. Okay, DNA consists of chromosomes. Actually we can say chromatin material. There is chromatin material. So this chromatin material organizes into rod shaped structures, called chromosomes. You have already studied this in class 8, है ना? So when this chromatin material is entangled mass, ठीक है, जैसे बहुत सारे धागों का गुच्छा, ठीक है, entangled mass. तो ये entangled mass gets organized into rod shaped structure. कब? When cell divides. Okay, this entangled mass converts into rod shaped structure. जब अगर आप सेल को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो आपको न्यूक्लियस के अंदर DNA दिखेगा, DNA के अंदर आपको क्रोमैटिन मिलेगा. बट अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से सेल को तब देख रहे हो जब सेल डिवाइड हो रहा है. जब अगर सेल डिवाइड होगा, सो इंस्टेड ऑफ सीइंग क्रोमैटिन you would be able to observe chromosomes inside the nucleus. Chromosomes मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर. Getting? तो जब सेल डिवाइड होता है तो this chromatin material gets organized into chromosomes. Now, this functional segments of DNA, is called gene or genes. ठीक है, पहनने वाली जीन्स नहीं, genes. ठीक है, GENES, genes. These genes are responsible for inheritance. तो फंक्शनल सेगमेंट्स जो है डीएनए के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है that organize into chromosomes and cell divides. बट जो फंक्शनल सेगमेंट्स है डीएनए के, that are known as genes. Clear? Okay. Now while observing under microscope, जब भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखोगे तो आपको डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस दिखेगा और कंपैरेटिवली लाइटली साइटोप्लाज्म स्टेन्ड दिखेगा, है ना? तो देयर वुड बी अ डार्क रीजन एंड अ लाइट रीजन. कोई भी आप स्टेन यूज करो, स्टेनिंग पता है ना, डाई, हम कलर दे रहे हैं सेल को ताकि हम माइक्रोस्कोप से अच्छे से उसको देख सके, ठीक है, इसलिए हम स्टेन करते हैं. अब स्टेनिंग जो है, आप अलग अलग स्टेन्स यूज कर सकते हो.
जैसे मिथाइलिन ब्लू, सैफ्रनिन, आयोडीन, ऐसे बहुत से स्टेन हैं जो आप यूज कर सकते हो टू stain the cell, to give color, to give dye, to dye the cell and see it under microscope clearly, है ना। इसलिए हम स्टेन का यूज करते हैं। जब आप स्टेनिंग करते हो तो सेल के कुछ रीजन्स में डार्कली स्टेन्ड होते हैं, ठीक है, डार्कर रीजन्स होते हैं, और वो डार्कर रीजन्स में न्यूक्लियस भी आता है, एंड देयर आर सम लाइटर रीजन्स, और वो लाइटर रीजन्स में आता है साइटोप्लाज्म। सो दिस you should be aware of. Okay, now apart from this, nucleus controls chemical activities and processes. तो processes में आपका reproduction भी आ गया। अब आप बोलोगे सेल कैसे reproduction करेगा? करेगा ना। सेल would divide from 1 to 2. अगर तुम्हें क्लास 8 में reproduction वाला चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, तो तुमको याद होगा कि जब अगर मेल स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है ये सिंगल सेल होता है। जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है। तो यानी हम आज जो मल्टी सेल्यूलर है वो कभी यूनिसेल्यूलर थे। ये एक सेल डिवाइड करते गया, है ना, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से कितने बनेंगे, 8, है ना। इसी तरह इट वुड गो ऑन, है ना। तो जो डिवीजन है इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। सेल का जो रिप्रोडक्शन है, सेल का जो डिवीजन है, जो भी प्रोसेसेस सेल में हो रहे हैं, दिस ऑल आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो हम न्यूक्लियस की बात करें, इट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी उनके पास दे आर पुअरली मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, यानी अच्छे से उनके पास है ना मेम्ब्रेन नहीं होता, या तो पुअरली मेम्ब्रेन होंगे या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है they would be lacking nuclear membrane, lacks nuclear membrane, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स ये भी पहले पढ़ा हुआ है, हाँ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास पुअरली मेम्ब्रेन्ड न्यूक्लियस है, या तो बिल्कुल न्यूक्लियस इन द सेंस यू कैन से पुअरली मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, और यू कैन से कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव मतलब एंशिएंट, पुराना। कैरियोट कैरियन से आता है, और ये कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जिनके पास ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, अगर है तो पुअरली डेवलप्ड है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। तो अगर मैं बात करूं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उनको मैं क्या बोलूंगी? उनको मैं बोलूंगी यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे यू का मतलब ट्रू, और कैरियन से आया जिसका मतलब न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर ऑर्गेनिज्म के पास है, सो दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूकैरियोट्स। जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। अब ये ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियस अगर अच्छे से नहीं डेवलप्ड है तो उसके आसपास का जो भी कंपोनेंट्स है, सपोज साइटोप्लाज्म, वो भी अच्छे से डेवलप्ड नहीं होगा। उसमें कुछ मेम्ब्रेन्स होंगे, कुछ ऑर्गेनेल्स होंगे, कुछ नहीं होंगे। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। क्यों?
क्योंकि न्यूक्लियस ही तो है जो सारी केमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। जबकि अगर न्यूक्लियस ही अच्छे से डेवलप्ड नहीं है तो वो जो एक्टिविटीज या प्रोसेसेस उस ऑर्गेनिज्म में कर रहा होगा वो भी पुअरली हैंडल्ड हो रही होगी, है ना, इतना वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करना लाइन बाय लाइन। मैं तुमको एक होमवर्क देती हूँ, मैंने तुमको सब कुछ एक्सप्लेन किया न्यूक्लियस के बारे में। एक एग्जाम्पल दिया प्रोकैरियोट्स का, दैट यू हैव टू सर्च। तुम्हें मिलता है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, जब भी तुम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ो, यू हैव टू सर्च फॉर एन एग्जाम्पल गिवन फॉर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप्ड नहीं है ऐसा बताया गया। इफ यू आर एबल टू स्पॉट, है ना, मतलब आप रीडिंग सही से कर रहे हो, है ना, जाग के कर रहे हो, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, सो अगर तुम्हें वो एग्जाम्पल मिलता है, कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, यू कैन डायरेक्टली मेल और यू कैन डायरेक्टली राइट इन कमेंट बॉक्स। आई वुड बी रीचिंग टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियस के पास जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है, ये याद रखना है। उसमें पोर्स है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ थिंग्स इज पॉसिबल। किस किस चीज से कंपोज्ड है? डीएनए के अंदर भी क्या है? क्रोमेटिन के फॉर्म में कब होता है, कब क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, जीन्स क्या है। ठीक है, दूसरा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, स्टेनिंग करते हैं तो डार्कर रीजन्स क्या है, लाइटर रीजन्स क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। सो दीज ऑल थिंग्स कवर अप योर न्यूक्लियस। ओके।